Good morning to all of you guys. So welcome back on my YouTube channel. So today blog it's all about 3-day guest lecture series, and for the same we have Dr. Ashwini HOD Gurkashi University Bathinda. So sir arrived here along with our in charge HOD Dr. Bajita sir. So सर के आने के साथ ही हमारे जो बच्चे थे वो भी जो हमारे जो कैंपस प्रीमिसेस के अंदर एंटर कर चुके बच्चों ने आने के बाद सर को विश किया, उनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद बच्चे हमारे जो कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर चले गए। और इन बिटवीन हमने भी सर से डिस्कस करके एक मैप आउट बना लिया था कि पूरे डे की एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी और कैसे हम सेशंस को कंडक्ट करेंगे। और गैस इसके बाद ये जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। सो गैस प्लीज स्टे ट्यून्ड। Dear students and esteemed faculty, so as you all know that today we all gathered here for 3-day guest lecture, and so for the theme is concern of our lectures is modernity, culture and power. Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to the guest lecture organized by Department of Sociology, Ramnagar Campus, University of Jammu, under the directorship of Professor Vinod Sharma. I am here to introduce our esteemed guest for today, Dr. Ashwini Kumar. Dr. Ashwini Kumar is a budding sociologist and academician who has made significant contribution to the field of sociology. He has completed his PhD from Punjab University, Chandigarh, and awarded the Nat Jarrett Fellowship. Thank you all the faculty members, especially Dr. Vijitra. I think he is also the head of this department, Department of Sociology, and Mr. Jagdeep Singh and Mr. Rakesh Singh. And I'm extremely happy to join you to connect with the multiple minds. As Jagdeep Singh already told you, like I'm not here to deliver a formal lecture because you're already having a chance to learn from well-reputed teachers. I'm here to interact with you. Like I'm here to interact with some. I think there are some students from computer sciences, and we all are aware how because of this information technology, the revolution in computer sciences is actually affected or impacted the society, and that's the reason your presence is actually matters in the class or the lecture of society. Okay, let's start. Okay, I think this topic, modernity, culture and power, this topic is very vast, diverse, as well as I think there are topics of modernity, modernism and modernization. These are different, although they are interrelated. And sometimes we are interchangeably using this sometimes modernity with the modernism as well as modernization. Like she said, modernity is actually itself represents the contemporariness. It means this is a continuous process. अगर आप जब आपने पढ़ा हो उस सोल्जर एक्टिविटी से नहीं कोई एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं इरेशनल जो वेबर ने क्या किया वेबर ने डिफरेंट रिलीजन्स एक्चुअली जब वी टॉक अबाउट सोसाइटी तो उस टाइम में सोसाइटी का जो इम्पोर्टेंट तो आपने बता दी कि हाउ वी आर इमिटेटिंग अदर्स और वी आर बिकमिंग मॉडर्न, बट हाउ इनोवेशन वी कैन बिकम मॉडर्न, दिस आई वांट टू नो दैट। तो जैसे आपने कहा कंटेम्प्रेरीनेस, शुरू में आप ही के पॉइंट से मुझे पॉइंट आया कि कंटेम्प्रेरीनेस मतलब इनोवेशन मीन्स आपका क्वेश्चन सही है कि हमारी कंडीशन इनोवेशन वाली नहीं है। हम जब भी कुछ नया कोशिश करते हैं बट उस चीज़ को ऐसे ना समझना कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या आपका नॉलेज वेरीफाई कर रहा हूँ, दैट रिक्वायर्ड सम टाइम ना कि आप किस लेवल का कनेक्ट कर रहे हो, आपको अपने ओपिनियन बीच में शेयर करने चाहिए। समटाइम हो सकता है ड्यूरिंग लेक्चर भी कुछ पूछने का मन करता है ना, तो एज अ टीचर हम क्या करते हैं स्पेस दे देते हैं बीच में, कभी किसी के बीच में अगर कोई ओपिनियन हो तो आप शेयर। आज मुझे पता नहीं कहाँ करना है, इसमें कह रहे हैं कि चलो आप चेंज कर लेते हैं, बट कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट पीपल यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज।
अब किसी को गाना गाना आता है, वो बोल स्ट्रेटेजी यूज कर लेगा कुछ। इसका मतलब इनिशियली ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होगा, बट इवेंचुअली ये इमिटेशन बन गया, वो जब जॉब बन गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी, गुरु काशी यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपना इतना मतलब प्रीशियस टाइम निकाला हम लोगों के लिए। और मेन तो थिंग्स बनता है हमारे जो इंचार्ज एचओडी हैं, जिन्होंने ये सब सोचा कि हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत को फुलफ़िल करना आपके टीचर्स का ही काम है, उनकी ड्यूटी है, और वो फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद कोई भी काम जो हम यहाँ पे इस कैंपस में करते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में करते हैं, वो वहाँ पे दो ही चीज़ें रहती हैं। एक तो आपका टीचिंग फैकल्टी रहता है, दूसरा नॉन टीचिंग फैकल्टी रहता है। तो जब तक ये दो चीज़ें एक ना हो तो आप कोई भी काम कर नहीं सकते। तो स्पेशल थैंक्स टू श्री गंगाराम जी, विनू जी एंड हमारे अशोक भैया जी। तो जहाँ भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे साथ खड़े रहते हैं।